ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਆਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਔਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਰ। ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ, ਰਾਤੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆ ਜਿਆ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਬੀਹੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਆ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ का, बाबा दीप सिंह साहिब जी का संगत रूपी परिवार दूर से नज़दीक से आकर गुरु पिता जी की गोद में एकत्रित हुआ है और हो रहा है। सभी परिवारक मेंबरों को मैं जी आया आखता हूँ। आओ, जिधर जिधर भी जगह मिले, बड़े प्रेम के साथ, किसी की भी बातों की आवाज़ ना आए तो मैं बात शुरू करूं, ध्यान से सुने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ऐसे नहीं, ऊंची आवाज में बोलो, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इस वक्त बहुत सारी संगत हमारे YouTube चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से भी जुड़ चुकी है। जो घरों में देख रहे, मैं उनको भी विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम का लिंक शेयर करो, ताकि और संगत गुरु चरणों के साथ जुड़ सके।
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और बाद में जाके भी आप ये प्रोग्राम हमारे चैनल पे देख सकते हो, कल वाला भी आज वाला भी। भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे भर लेना। जो पंजाब में कई जुड़े हैं वो हैरान होते होंगे कि आज जो मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। मैंने कल भी बात की थी, आज का ये कार्यक्रम सिंधी संगत में हो रहा है, और सिंधी संगत उनको हिंदी में फिर अगर कोई बात बोली जाए उनकी पकड़ में जल्दी आती है। तो मेरे गुरु नानक का यही मिशन रहा है, जिधर भी मेरा गुरु नानक गया उनको उनकी ही बोली में समझाया। कितनी भाषाओं में गुरु साहब ने वाणी को उच्चारण किया, बस इसी मनोरथ को लेके, क्योंकि हमारा काम जोड़ना है, जोड़ना, जोड़ने जैसा पुण्य नहीं। और बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, तोड़ने जैसा पाप नहीं। आखो वाहिगुरु जी, हमारा काम जोड़ना है। तो आओ, मैं बिनती, एक बात मैंने बड़ी जरूरी करनी और जिंदगी में बहुत काम आएगी। मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, जिनके पास फोन हैं कृपा करके बंद कर दो। फोन यहाँ पे करने सुनने नहीं, बस कीर्तन का आनंद लो। अगर कोई वीडियो लेनी या ऐसे कोई करना है कीर्तन की रिकॉर्डिंग, वो अलग बात, मगर किसी ने फोन करने सुनने नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलानी, कुछ भी नहीं। बस जो काम करने आए हैं वो काम करें। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक आदमी से किसी ने ये बात कही, उससे पूछा कि भाई अगर तुझे कोई $1 मिलियन देवे, यानी कि 10 लाख डॉलर देवे, तू कबूल कर लेगा? उसने सिर हिलाया, कहता उसी वक्त कबूल कर लूंगा। 10 लाख कोई डॉलर मुझे देवे, उसी वक्त मैं कबूल करूंगा। उस बंदे ने बात को रोका नहीं, बात को और आगे बढ़ाया। कहता अगर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर की बजाय 10 मिलियन डॉलर दिए जाएं, 1 करोड़ डॉलर, कह दो वाहिगुरु जी, तू कबूल करेगा? कहता है क्यों नहीं करूंगा। 10 लाख डॉलर कोई देवेगा तो भी कबूल करूंगा, 1 करोड़ डॉलर कोई देवेगा तो भी मैं कबूल करूंगा। क्यों कबूल नहीं करूंगा? तो वो बंदा सामने वाला पता क्या कहता है? कहता है तुझे 1 करोड़ डॉलर देने के बाद बंदा कोई ये शर्त रख देवे कि तुम्हें ये पैसे जब मिल जाएंगे ना, डॉलर इतने मिल जाएंगे, करोड़ों रुपये बन गए। 1 करोड़ डॉलर कितने करोड़ रुपया बन गया सुनियो। अगर तुझे ये डॉलर मिल जाए तो उसके बाद तुम कल उठ नहीं सकोगे, तुम्हारी उसी वक्त मौत हो जाएगी। बताओ तुम ये डॉलर कबूल करोगे? सुनियो, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तो वो व्यक्ति ने उसी वक्त जवाब दे दिया, कहता बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ डॉलर अगर मुझे कोई देवे और कहे कल तूने उठना नहीं, मर जाना है, ऐसे डॉलर लेके मैं क्या करूंगा? ऐसे डॉलर लेके मैं क्या करूंगा? तो उस वक्त वो आदमी पता क्या कहता? कहता बंदेया, ओ प्यारेया, इसका मतलब तेरे उठने की कीमत 1 करोड़ यानी कि 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। इसका मतलब तेरे उठने की कीमत 10 लाख, जो वाहिगुरु 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो वो जो बंदा था ना सामने वाला, कहता है इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आखो वाहिगुरु जी, कि तू मुझे 1 करोड़ डॉलर यानी कि 10 मिलियन डॉलर देने के लिए भी तैयार, और इसके बदले में ये कह रहा है कि कल मैंने उठना नहीं। मैं कहता हूं ये मुझे कबूल नहीं, मैं इन डॉलरों को भी ठुकरा रहा हूं। कहता है इसका मतलब तेरे उठने की कीमत 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। कहता इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मेरी विनती है, सुनियो ध्यान से, हम उन चीजों में फंस जाते हैं जो बाद उठने के बाद हमें करनी पड़ती हैं।
सुनियो, हम उन चीजों में सारा दिन फंस जाते हैं जो हमें उठने के बाद करनी पड़ती हैं। दिन के दबाव, दिन के काम काज, फलाने से मिलना है, फलाने के साथ मीटिंग करनी, उस जगह पे मैंने जाना है। सारे दिमाग को हम इस बात से ही भर लेते हैं। पर प्यारेओ, जब सुबह हम उठते हैं ना, उस वक्त 1 मिनट रुको, सोचो कि आज अगर मैं जाग पड़ा हूं ना, तो ये गुरु नानक, गुरु रामदास जी का सबसे बड़ा तोहफा आज मुझे मिल गया है। सत श्री अकाल। आज मुझे गुरु साहिब का सबसे महंगा तोहफा मिला है कि आज मैं बिस्तर से उठ गया हूं, जाग पड़ा हूं, आज मेरी आंख खुल गई है। कई ऐसे दुनिया में लाखों ही लोग होंगे जिन्होंने रात को योजनाएं बनाई, कल मैंने ये काम करना है, कल मैंने इससे मिलना है, कल सारा दिन मैं ये करूंगा, मगर रात को सोए उसी तनाव में और सुबह उठ नहीं पाए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ये प्यारे खुशकिस्मती है हमारी, खुशकिस्मती क्या कि आज हम जिंदा हैं, जिंदा। और इस बात को लेके रोजाना अपने गुरु का शुक्राना करो। जब जाग खुल गई ना, जाग खुल गई, उसका शुक्राना करो। शुक्र है दातिया, लाखों इस दुनिया में रात को सोए और सुबह उठने का हुक्म नहीं हुआ। मैं रात को सो भी गया, आज सुबह तेरी कृपा से जाग पड़ा हूं। ये गुरु रामदास जी आपका शुक्र है। सारे बोलो, गुरु रामदास जी आपका शुक्र है। बाबा दीप सिंह जी आपका शुक्र है। बस ये चीज अपने अंदर बसाओ कि आज अगर मुझे जीवन मिल गया है ना, तो उसका मैं शुक्राना करूं और ज्यादा से ज्यादा सारा दिन मैं उसकी याद में व्यतीत करूं। ज्यादा से ज्यादा मेरा ध्यान उसकी तरफ लगा होवे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ये मेरी जी। विनती है, विनती। अगर गुरु ने आज दिन दे दिया है ना, उस दिन को सफला करने का यत्न करो। टाइम पास तो सारे कर लेते हैं, मगर दिन को सफला किया करो। सफला नितनेम करके, बाणी पढ़ के, सिमरन करके। मैं कहता हूं अगर कुछ भी ना कर पाओ ना, खाना खाने वक्त बैठते हो ना, ये छोटे छोटे टोटके अपना लो। खाना खाने के लिए बैठे, 5 बार मूल मंत्र का अंदर की जाप कर लिया और गुरु का शुक्राना कर दिया। शुक्र दातिया, तूने खाने के लिए मुझे भोजन दिया है। जब प्रसादा छक लिया, छकने के बाद 5 बार मूल मंत्र का जाप करके शुक्राना करो। अंदर ही करो, चाहे जुबान से नहीं भी बोला, मगर अंदर ही कह दो, गुरु रामदास जी आपका शुक्र है, बाबा दीप सिंह जी आपका शुक्र है, जो आपकी कृपा से ये मैंने अन्न का दाना अपने मुंह में डाला है। अगर घर में जाते हो, घर की बेल खड़काते हो ना, तो भी उसका शुक्राना करो। शुक्र है दातिया, ये तूने मुझे मकान दिया है। कई तो ऐसे लोग हैं जो रिक्शे के ऊपर सारी रात व्यतीत करते हैं, सड़कों के ऊपर सारी रात व्यतीत करते हैं। चाहे मुझे किराए का दिया तो है ना। आखो भाई गुरु जी, वाहेगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लाखो धन बाबा दीप सिंह ये मेरी जी। बेनती, हर बात पे उसका शुक्राना करो। शुक्राना, शुक्र है दातिया, तूने मुझे ये आज दिन दे दिया, दिन। और सच्ची बात है, हर पल हर खड़ी उसका शुक्राना किया करो। जो उसका हर वक्त शुक्राना करता है ना, फिर मेरा गुरु रामदास उसके सारे कार्यों को आप खुद संवारता है जी। शुक्राना किया करो। शरीर ठीक है ना, शुक्राना करो। मुझे बात याद आ गई, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा श्याम सिंह जी हुए हैं अमृतसर दरबार साहिब के पास, उनका स्थान बना है। आज भी उनके स्थान से हरमंदर साहिब कड़ा प्रसाद की देग जाती। किसी भी बंदे का, किसी भी महापुरुष का नाम लेके हरमंदर साहिब अरदास नहीं होती,
मगर जो पहली अरदास होती ना 3 पहरे की, बाबा श्याम सिंह जी का रोज दरबार साहब के अंदर नाम लिया जाता है। वो महापुरख डेली उनका नाम लिया जाता है कि उनके स्थान से ये देग आई। सुने हो, बाबा श्याम सिंह जी महापुरख अपने स्थान पे ना जल छिकाने की सेवा कर रहे, उनकी रूटीन थी। कटोरे में जल डाल देना, संगत ने आके छकना, तो महापुरखों ने कहना अच्छा जल छकने लगा, छकने से पहले बोल वाहिगुरु। आप भी बोलो, आप भी बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। बस ऐसे ही महापुरखों ने सिमरन करना करवाना, ये भी बंदगी बन जाती। मैं सुबह उठता हूं, मैं इतना ही कह देता हूं ना, धन बाबा दीप सिंह जी आपका शुक्र है। बस ऐसे ही सारा दिन बीत जावे, इससे बड़ी बंदगी क्या। जहां पे नाम तेरा आया गर्दन झुक गई अपनी, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी। जहां पे नाम तेरा आया गर्दन झुक गई अपनी, यही तो है जिंदगी, यही तो है बंदगी। अब महापुरखों ने जपाना, बोल वाहिगुरु। आप भी बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। तो रोज रूटीन थी महापुरुषों की। एक दिन ऐसे रूटीन के मुताबिक सबको जाप करवा रहे, एक बंदा आया, वो पानी पीने लगा। महापुर कहते पानी पीने से पहले, जल छकने से पहले बोल वाहिगुरु। उसने जल का कटोरा जो पकड़ा था ना, जोर से ऐसे फेंका, जोर से मारा। जोर से जब फेंका ना, कहता मैं क्यों बोलूं, मुझे वाहिगुरु ने दिया ही क्या है, मुझे तो कुछ भी दिया नहीं, मैं इतना दुखी हूं, मैं नहीं बोलूंगा वाहिगुरु। महापुरुष समझ गए ये अंदर से दुखी है, दुखी। और महापुरुष कभी भी जख्मों पे नमक छिड़कने का काम नहीं करते, जख्म पे मलम लगाने का काम करते हैं। महापुरुष समझ गए ये जो बंदा है अंदर से दुखी है, इसका इलाज होना बाकी। तो महापुरुष पता क्या कहते, कहते प्यारेया अच्छा अगर वाहिगुरु नहीं बोलना ना बोल, बता तेरी मुश्किल क्या। कहता है मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, अच्छा पहनने के लिए भी कुछ नहीं, रहने को घर भी नहीं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे प्यार से बुलाता नहीं, कोई मेरी कदर नहीं करता, वाहिगुरु ने मुझे दिया क्या। तो महापुरुषों ने सेवादार को इशारा किया, सबसे सुंदर कमरा स्थान पे ना इसको दो, सोने बस्तर इसको नए ला के दो, ये पहने, इसको अच्छा भोजन करवाओ, इसकी अच्छी सेवा करो। सेवादारों ने वचन मान लिया, उसको अच्छा कमरा दे दिया। वाह वाह, शुक्र शुक्र, वाह वाह। माता जी कह रहे वाह वाह, कहते कि हम 3 से 4 रोज दोपहर को प्रोग्राम और रात को देखते हैं। वाह वाह, रोज ही देखते हैं। कहते बस उठ के मैं आपको ही देखने आई हूं नजदीक से। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तुसी अपनी असीस रखो जी, तुसी मां बराबर हो, असीसां बड़े असीसां दे। हाँ गुरु मेर, गुरु मेर। बैठो बैठो बैठो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। अब सुनना, अब महापुरुषों के सेवादार ने जब वचन माना, उसको अच्छा कमरा दे दिया, खाने पीने का भी अच्छा प्रबंध, कपड़ों का भी अच्छा प्रबंध। 4-5 दिन ऐसे बीत गए, सेवा पानी उसकी हो रही बड़ी अच्छी। अब जब 4-5 दिन बीते ना, तो महापुरुषों ने अपने पास एक दिन बुलाया, कहते प्यारेया एक बात करनी। अब थोड़ा अंदर नरम हो चुका है। महापुरुषों आप हुक्म करो, क्या कहते हो। कहते अपनी ना एक बाई आंख हमें निकाल के दे, तो अभी तुझे 10,000 रुपया दिया। कह दो वाहिगुरु जी, तब का 10,000 आज के लाखों। कहता महापुरुषों को आज क्या हो गया। कह रहे कि एक आंख निकाल के दे। कहते तू अपनी कही जा, हम अपनी बोलते हैं। अगर आंख के साथ साथ एक अपना बायां हाथ भी दे देवे तो 20,000 तुझे अभी दिया। कहता महापुरुषों ये कैसे वचन आप कर रहे, ये कैसी बातें कर। कहते तू अपनी बात कर, हम अपनी करते। अगर बाईं आंख बाएं हाथ के साथ बायां पैर भी उतार के देवे तो 50,000 अभी दिया। तो कहता है महापुरुषों ये आज आपको क्या हो गया। कभी कहते हो
बाईं आंख, कभी कहते बायां हाथ, कभी कहते बायां पैर दो, इतने पैसे मिलेंगे। महापुरुषों ये मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आंख दे दूंगा, एक आंख से देखना भी मुश्किल, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक हाथ अगर आपको दे दिया, सारा क्रियाक्रम मेरा शरीर का मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना। अगर पैर दे दिया, चलना फिरना मुश्किल। तो महापुरुष पता क्या कहते, कहते प्यारे यार, अब वो दिन याद कर जब तू बोलता था कि वाहिगुरु ने मुझे दिया ही क्या है। आज हम तेरे शरीर की हजारों लाखों रुपये कीमत डाल रखे हैं, तू अपने शरीर का एक अंग भी हमें देने के लिए तैयार नहीं। ओ गुरु ने तुझे ये स्वस्थ शरीर दिया है, ये छोटी कृपा थोड़ी है। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। उनसे कभी पूछ के देखो जिनका एक पैर नहीं होता, उनसे कभी पूछो जिनका एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, कितना शरीर सही ढंग से नहीं चल सकता। उनसे पूछ के देखो कभी, जिनका शरीर सही ढंग से नहीं चलता, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, उनसे कभी पूछ के देखो। कहते ये स्वस्थ शरीर दिया है, ये छोटी कृपा नहीं। ये मेरी विनती है प्यारे हो, अगर गुरु ने आज का दिन हमारी झोली में डाला है ना, तो बस ये अपने माइंड में पक्की बात फिक्स कर लो, मैंने दिन को, टाइम को पास नहीं करना, अपने समय को और दिन को सफला करना। क्या खोता न गुरु रामदास जी, गुरु रामदास। आज मैं बहुत की खुशकिस्मत हूं कि आज मुझे उठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार से सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 547 नंबर अंग के ऊपर। जैसे हमारे अंग है ना, मैं गुरु पिता के अंग बोलता हूं, अंक पन्ने नहीं, अंग। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, ये गुरु की देह है। तो 547 नंबर अंग के ऊपर ये शब्द दर्ज, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी नाम, पाले अकिरत घना पूरन दृष्ट तेरी नाम। बड़ा प्यारा ये शब्द। और आज मैंने जो बातें करनी, गुरु सेवा लवे, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जब उन बातों को सुनोगे, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना गुरु के प्रति और बढ़ जाएगी। गुरु सेवा लवे। आओ बड़े प्यार के साथ पहले ये शब्द गाओ, सीधी सी लय में मैं कीर्तन करूंगा और सारी संगत ने मेरे साथ साथ करना। और जिधर जिधर भी जगह मिल रही ना, बस बैठने का यत्न करो, ये मेरी विनती है। चाहे गोडे उठा के संगत को बिठाना पड़े, बिठाओ। सारी संगत बस आनंद से जुड़ो, गुरु सेवा लवे। और फिर से बेनती, जो हमारा YouTube चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, उस पर लाइव चल रहा है, आगे से आगे ये लिंक शेयर कर दियो जी। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। बोलो, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। 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 पाले अकिरत कणा, पाले अकिरत कणा पूरन दृष्ट तेरी राम। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पाले अकिरत
बड़ा मेरी मत थोरी तन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास अरे बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी अगाध बोध अपार करते मोह नीच कछु न जाना अगाध बोध अपार करते मोह नीच कछु न जाना रत्न त्याग संग रहन कौटी पशु नीच आना पशु नीच आना पशु नीच आना तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी सारे तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी पाले अकिरत कना पाले अकिरत कना पूरन दृष्टि तेरी राम तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी धन गुरु रामदास तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी सारे प्यार ना लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी बड़ी ताकत इस नाम में सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी पढ़ो त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समरथ स्वामी पैज राखो मोरी नानक सरन समरथ स्वामी पैज राखो मोरी पैज राखो मोरी तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा मेरी मत थोड़ी सारे तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा
मत थोरी राम, पाले अकिरत कणा, पूरन दृष्ट तेरी राम। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, सुनियो, जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन धन अर्पी सबो, सगल वारिए एह जिंद। देखे सुने हदूर सद, घट घट ब्रह्म रविंद। अकिरत कणानो पालदा, अकिरत कणानो पालदा। प्रभ नानक सद बख्शिंद, तू समरथ बड़ा। मेरी मत थोरी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम। पढ़ो जी। पाले अकिरत कना, पाले अकिरत कना, पूरन दृष्टि तेरी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक बेनती मानोगे? दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ लो प्यार से। इतनी ताकत है इस नाम में, जो मैं नाम ले रहा हूं, इतनी ताकत अगर गुरु मेर के खाते में आ जावे ना, आप घरों में बाद में पहुंचोगे, गुरु बख्शिश के दोनों हाथ पहले ही आपकी झोली में खोल दे देगा। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। इन नामों में इतनी ताकत है गुरु रामदास बाबा दीप सिंह के। तो जिधर जिधर भी जगह मिली है ना, चौंकड़े लगाओ, दोनों हाथ जोड़ो और प्यार से सारे कहो, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, ओ धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, ओ जहां पे नाम तेरा आया, जहां पे नाम तेरा आया। गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई अपनी, जी धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सारे सिंह गाओ, जी, जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। अकिरत कणा का करे उधार, अकिरत कणा का करे उधार। प्रभ मेरा है सदा दयार, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास
बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जुड़ जाओ जुड़ जाओ। वाहिगुरु 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 गज के गज के। वाहिगुरु 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 गुरु रामदास। वाहिगुरु 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 दीप सिंह साहब वाहिगुरु वाहिगुरु जेड़ा जेड़ा जप रिया वाहिगुरु ओ सब दे बंधन कटो वाहिगुरु 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 आपकी आवाज वाहिगुरु वाहिगुरु संगत की आवाज वाहिगुरु 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 और ऊंची और ऊंची। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो पीछे तक बैठे सारे जपो सारे। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये समय दोबारा नहीं मिलेंगे सारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पाले अकिरत कना पाले अकिरत कना पूरन दृष्टि तेरी राम तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम बोलो जी तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। थोड़ा सा समय मैंने 20-25 मिनट और लेने हैं आपके। बस इसी तरह मन टिका के बैठना। शब्द सबने पढ़ा और जब जो मैं बातें बोलने लगा हूं ना इनको सुनोगे अपने गुरु के ऊपर आपको मान आएगा मान और अंदर से प्रेम और बढ़ जाएगा। खो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक सेकंड खाली ना जावे ये ध्यान रखना। बहुत कीमती समय है कीमती समय। करोड़ों रुपये देने के बाद ये समा दोबारा नहीं मिलेगा। ये मेरी विनती है बस लाभ लो पूरा जितना लाहा ले सकते हो लो। शब्द हमने पढ़ा तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी नाम पाले अकिरत कना पूरन दृष्ट तेरी नाम। अकिरत घण जो गुरु की कीर्ति को ना जाने ना शुक्रा है जी। गुरु के किए हुए पर उपकारों को ही भूल जाए ना शुक्रा उसकी किधर भी कोई जगह नहीं। पर मैं हैरान होता हूं प्यारेओ अकिरत घण जिसको हर जगह से धक्के पड़ते हैं मगर मेरा गुरु नानक मेरा गुरु रामदास ऐसा है मेरा बाबा दीप सिंह ऐसा है जिधर से अकिरत घणों को धक्के पड़ते हैं ना धक्के
थके। जिस अकृत घण को किसी ने भी जगह नहीं दी, मेरा गुरु नानक गुरु रामदास ऐसा है, ऐसे भी अकृत घणों को पालता है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास वैसे जी। भाई गुरदास जी की वाणी अगर पढ़ते हो ना, तो वो कहते अकृत घण कितना बुरा है। सुनियो, एक दिन धरती ने पुकार की थी निरंकार के आगे, निरंकार मेरे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया। तो निरंकार कहता, किसका बोझ बढ़ गया? तेरे ऊपर पर्वतों का बोझ बढ़ा है। सुनियो, किस चीज का बोझ बढ़ा है तेरे ऊपर? पर्वतों का। कोई ज्यादा घर बार हो गए, उनका बोझ बढ़ गया? नदियां नालों का, समुद्रों का बोझ बढ़ गया? कहते कोई वृक्षों का, जंगलों का बोझ बढ़ गया? या जितने जी जंत अनगिनत फिर रहे हैं, इनका कोई बोझ बढ़ गया? ओ धरती, तू एक बार बोल तो सही, अगर नदियों नालों का, पर्वतों का, वृक्षों का, जी जंतुओं का बोझ बढ़ गया है ना, मैं ये बोझ अभी कम कर दूंगा। तो धरती पता क्या कहती? कहती, हे निरंकार, इन चीजों का बोझ मेरे ऊपर नहीं बढ़ा। ना तिस भारे पर्वतां आसमान खहंदे, पर्वतों का बोझ भी नहीं। ना तिस भारे कोट गढ़ घर बार दिसंदे, ये जितने घर बार हैं इनका भी बोझ नहीं। ना तिस भारे सायरा नद वाव खंदे, ये समुद्रों का, नदियों नालों का भी बोझ नहीं। ना तिस भारे तरवरा फल सुफल फलंदे, ये जंगलों का, वृक्षों का, फलों का, फूलों का भी बोझ नहीं। ना तिस भारे जी जंत अनगणत फिरंदे, ये जीव जंतुओं का भी बोझ नहीं। फिर धरती बता तो सही, तेरे ऊपर बोझ किस बात का बढ़ गया? तो उस वक्त धरती ने पुकार की, कहती, भारे भूई अकृत घण मंदी हूं मंदे। हे निरंकार, मेरे ऊपर अकृत घणों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जो तेरी दात लेके तेरे कोई विसार देते ना, उनका बोझ बहुत बढ़ गया। अकृत घण कितना बुरा है। सुनियो, भाई गुरदास जी कह रहे, कहते मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस। मद कहते शराब को, कहते शराब में अगर कुत्ते का मांस डाल के उसको भून लिया जाए ना, सुनियो, करने नहीं ऐसे काम। एक उन्होंने मिसाल दी कि अकृत घण कितना बुरा है। कहते मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस, धरिया मानस खोपड़ी तिस मंदी वास। कहते एक बंदे की खोपड़ी में इस कुत्ते के मांस को जो शराब के साथ बना है, उस मांस को एक बंदे की खोपड़ी में डाल दिया जाए और गंदी सुगंधी आ रही हो उसमें, खोपड़ी की भी, कितने चिर से पड़ी खोपड़ी, उसकी भी सुगंध, शराब की भी सुगंध, कुत्ते के मांस की भी सुगंध। कहते रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन तास। कहते खून के साथ कपड़ा लथपथ हुआ हो और उसके साथ भी एक औरत ने उस चीज को ढका हुआ है, ढका हुआ। ढक ले चली चूहड़ी कर भोग विलास। तो किसी ने उस औरत से पूछा, भाई इतनी गंदी सुगंधी आ रही, तेरे पास क्या है? ढकी भी वो चीज तूने लहू लुहान कपड़े से है, इस अपने हाथ में तूने क्या छिपा के रखा है, क्या चीज ले जा रही? तो वो कहती, ये शराब में भुना हुआ कुत्ते का मांस एक बंदे की खोपड़ी में डाल के उसको ढक के ले जा रही। तो वो बंदा पता क्या कहता? कहता इसको ढकने की क्या जरूरत, इतनी गंदी चीज, इतनी बुरी चीज, इसको लहू के कपड़े के साथ तू ढक के ले जा रही, इसको ढकने की क्या जरूरत? तो वो औरत पता क्या कहती? आंख सुनाए पुछया लाहे विश्वास। पुछया किसी ने तो आगे पता वो क्या बोलती? कहती नदरी पवे अकृत घण मत होए विनाश। कहती चाहे ये चीजें बुरी हैं मगर मैं इनको ढक के इसलिए ले जा रही हूं कि किसी अकृत घण की निगाह इसके ऊपर न पड़ जाए। अकृत घण की निगाह देखो इतनी माड़ी है। कहती नदरी पवे अकृत घण मत होए विनाश।
अगर अकिर्त खण की निगाह पड़ गई ना तो ये भी गंदी चीज भी विनाश हो जाएगी। अकिर्त खण इतना बुरा, पर मैं हैरान होता हूं, अकिर्त खण बुरा, मगर गुरु रामदास के दर पे कोई अकिर्त खण भी आ जावे ना, तो गुरु रामदास अकिर्त खण को भी अपने गले के साथ लगा लेते हैं। सत श्री अकाल। बाबा दीप सिंह के चरणों में कोई अकिर्त खण भी आ जाए ना, किर्त खण, और बाबा दीप सिंह अकिर्त खण की भी झोलियां भरने में समा नहीं लगाते। बोले सोनहाल। सत श्री अकाल। अकिर्त खणों की भी झोलियां भरता है मेरा सतगुरु। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह धन जी। बाबा। दीप सिंह अकिर्त खणों की भी झोलियां भरता है। पता क्यों? साहब कहते क्योंकि मुझे उड़ीक है, मुझे इंतजार है, एक दिन आएगा ये भी बदल जाएगा। हैं जी, हैं जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। कितनी बातें मेरे आंखों के सामने आ रही। एक बात मैं आपसे साझी करने का यत्न करूंगा। देखो, अकिर्त खण सबसे बुरा, मगर अकिर्त खण को बख्शवा सकती है गुरु की नदर। गुरु की नदर पड़ जाए अकिर्त खण भी बख्शा जाएगा, मगर गुरु की नदर मिले कैसे, ये मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। सदगुरु सेवा लवे। गुरु की नदर चाहिए ना सबको, जिसको गुरु की नदर चाहिए दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, सत श्री अकाल। वाह वाह। सत श्री अकाल। गुरु की नदर जिसके ऊपर हो जाए ना, गुरु की नदर में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा अकिर्त खण भी बख्शा जाता है, बड़े से बड़ा। और गुरु की नदर मिलती पता किसको है? जो बाणी पढ़ते हैं, जो सिमरन करते हैं, जो संगत में बैठते हैं, वो गुरु की नदर के पात्र बन जाते। पात्र। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास अब जी। सुनियो, कोई अवगुण है मेरे अंदर, है जी, आपके अंदर कोई अवगुण है, कोई भी आदत पड़ गई, बड़ा कोशिश करते हैं, वो आदत जा नहीं रही, छूट नहीं रहा, वो अवगुण साथ नहीं छोड़ रहा, उस अवगुण को बख्शवा सकती है गुरु की नदर। अकिर्त खणों को बख्शवा सकती है गुरु की नदर। अब गुरु की नदर मिले कैसे? जब हम वाणी के साथ जुड़ते हैं ना, तो गुरु की नदर के पात्र बन जाते। एक बात मैं आपसे बोलूं, बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरख बैठे थे नानकसर। बाबा नंद सिंह जी के बाद बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा संभाल की, उनके पास हरदत्त सिंह नामक एक बंदा आया, इलाके का मुखिया था, चौधरी था। आके बाबा ईश्वर सिंह जी को नमस्कार की और नमस्कार करके कहता है, महापुरखों कुछ कृपा करो। तो महापुरख पता क्या कहते? कहते हरदत्त सिंह शराब तो नहीं पीता? अब सुनियो, उसने हाथ जोड़ लिए, कहता है जी कभी कभार पीता हूं। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। कभी कभार पी लेता हूं, कोई पार्टी होवे, कोई दोस्तों मित्रों के साथ बैठ जाऊं तो पी लेता हूं। बाबा ईश्वर सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न पता क्यों? ये नहीं कि उसने शराब पीता इसलिए, नहीं नहीं, इसलिए प्रसन्न हुए कि उसने सच बोल दिया। सच जी, जब कोई मित्रों दोस्तों के साथ बैठता हूं तो पी लेता हूं। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहते छोड़ दे, बहुत बुरी आदत है, छोड़ दे। तो उसके बाद पता क्या कहता? कहता महापुरखो जो हुक्म लगाओगे मानूंगा, शराब नहीं छोड़ सकता। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। महापुरुष और प्रसन्न हुए, कहते शाबाश, दूसरी बारी फिर सच बोला तो नहीं। देखो, गुरु और गुरु के प्यारे सच के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बाबा नंद सिंह साहिब का वचन है। वैसे तो सिख का जीवन हर वक्त की सच्चाई भरया होवे, हर वक्त, मगर ये भी बात सच्ची है
कि इस संसार में चलते हुए कहीं ना कहीं झूठ तो बोला ही जाता है, कभी कारोबार करते कभी कहीं ना कहीं तो बोला ही जाता है, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कभी भी भूल के झूठ नहीं बोलना। पहली जगह गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी, मरते मर जाओ मगर गुरु की हजूरी में झूठा वचन ना होवे। दूसरा, जहां पे ये संगत बैठी हो वहां पे भी झूठा वचन नहीं। तीसरा, 5 प्यारे रंगे हुए गुरसिख, रंगे हुए 5 प्यारे, उनके सामने भी कभी झूठ नहीं। और चौथा, रंगया होया गुरसिख करनी वाला महापुरख, उसके सामने भी कभी झूठ नहीं बोलना। अब आप सियाणे हो, मान लो अपने इलाके में रह के कोई शराब पीता है, माड़े कर्म करता है, एक आस है ना मैं दरबार साहब जाऊंगा बख्शा जाऊंगा, तो जो दरबार साहब जाके माड़े कर्म करे बताओ कहां पे बख्शा जाएगा? ऐसे होता है ना। ये जगह है ऐसी जहां पे झूठ कभी भी ना निकले। मरते मर जाओ मगर सच्चा वचन होवे। सच्चाई के ऊपर गुरु खुश होता है, मां पर खुश होते हैं जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यही तो भूमिये चोर को भी कहा था गुरु नानक ने। भूमिया चोर आया था ना, महाराज कहते क्या करता है? कहता जी चोर हूं। बाबा कहता चोरी छोड़। कहता महाराज जो मर्जी बोलो चोरी नहीं छोड़ सकता। तो गुरु नानक बड़े प्रसन्न हुए, कहते शाबाश। कहता महाराज मैं तो चोरी करता हूं, आप शाबाश दे रहे। कहते सच्चाई के ऊपर शाबाश दे रहे तेरी, चोरी के ऊपर नहीं, तूने सच बोल दिया। कहते चोरी छोड़। कहता नहीं छोड़ सकता। बाबा कहता अच्छा फिर चोरी करता रह। देखो तारने का ढंग निराला, मरीज देख के दवा दी जा रही ना। महाराज कहते चोरी करता जा, चोरी से नहीं रोकेंगे मगर 3 बातें मानेगा? कहता जी मानूंगा, जो कहोगे मानूंगा मगर चोरी नहीं छोड़नी। कहते पहली बात, आज से झूठ नहीं बोलना। कहता हमारे पक्का वादा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा वचन, कभी किसी का नमक खा के हराम नहीं करना, नमक हरामी नहीं। कहता 7 वचन मारा, ये भी वचन मानूंगा। तीसरा वचन, कभी भी गरीब मार नहीं होने देनी। मानेगा? कहता जरूर मानूंगा। मारा कहते करता जा चोरी, बस ये बातें मान। अब तारने का ढंग था। अब गया राजे के महलों में चोरी करने के लिए, बड़े अच्छे कपड़े डालता था, सुबह दान पुण्य भी बड़े करता था। अब जब गया राजे के महलों में चोरी करने के लिए, पहले इतनी बारी गया कभी सिपाहियों ने नहीं पकड़ा, आज पकड़ लिया। सिपाही कहते कौन है तू, इस वक्त क्या कर रहा है यहाँ पे? कहता भूमिया अब तो फंस गया तू। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। अगर सच बोलेगा इन्होंने हथकड़ी लगा देनी, झूठ बोलेगा तो बाबे के साथ जो किया वचन उससे पीछे हो जाएगा। तो मन में उसी वक्त फैसला लिया। कहता है चाहे हथकड़ी लगाएं, चाहे जान से मार दें, मगर गुरु नानक के साथ किया वचन निभाना। कहते कौन है तू? कहता मैं चोर हूं। उनके हाथ कांपने शुरू हो गए। कहते कभी चोर ने भी कहा मैं चोर हूं? ये लगता है कोई राजे का खास बंदा हमें चेक करने आया, हम ड्यूटी सही दे रहे कि नहीं। कहते कौन है तू? कहता मैं चोर हूं। वो कहते जा भाई अंदर चले आ जा। कह दो वाहिगुरु। वाहिगुरु जी। अब दोनों हाथ ऐसे करता, कहता वाह बाबा तेरा वचन माना, इन्होंने तो चोरी करने के लिए अंदर आने दिया। वाह तेरा वचन, इसमें बड़ी ताकत, इन्होंने रोका ही नहीं। अब अंदर गया, जो सामान चोरी करना किया। जब एक कपड़े में सारा सामान बांध लिया ना, तो अब जब भागने लगा, आप सियाने हो, चोरी करने के लिए कोई चोर जावे किसी जगह पे, उसको जितनी मर्जी भूख लगे कभी रुकता नहीं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। मगर ये बाबे के बचनों का असर, इसको इतनी जोरों की भूख लगी, एक कदम भी नहीं चला जा रहा। कहता कुछ खाने को मिल जाए। अब एक मेज पड़ा था, मेज के ऊपर खाने की कोई चीज थी। उस चीज को खोला, वो था चूरण। चूरण खाया, चूरण में था नमक। नमक लग गया ना जुबान को। जब नमक लगा जुबान को, अब वो सारी जो गांठ बांधी थी उसको उठा के जब भागने लगा ना, बाबे का दूसरा वचन कानों में गूंजा, ओ भूमिया नमक खा के नमक हरामी ना करें। कहता क्या करूं, सामान लेके जाऊं कि छोड़ूं? मन में फैसला लिया। कहता बाबे का वचन निभाना। सारा सामान वहीं रख दिया, खाली आ गया। सुबह हुई, राजे को पता चला कोई चोर भी आया, सच बोल के अंदर गया, सामान बांध भी लिया मगर लेके नहीं गया। अब जिस जिसके ऊपर शंका होता है, शक होता है, उनको बुलाया।
सबकी मार पिटाई शुरू कर दी। भाई रात को तू आया था, तू आया था। अब जब भूमिये को पता चला ना मेरे कारण गरीब मार हो रही, आ गया राजे के पास, क्योंकि तीसरा वचन यही था, गरीब मार न होने दे में। आ गया, राजा तेरे चोर ये नहीं, तेरा चोर मैं हूं। राजा पहचानता था, कहता भूमिया तू आया भी सच बोल के, बांध भी सब कुछ लिया, लेके नहीं गया, भी सच बोल के आ गया। कारण तो भूमिये के हाथ जुड़ गए, नैन कटोरे भर आए। कहता कारण कुछ और नहीं राजा, कारण बस इतना है, मुझे गुरु नानक मिल गया है। बोले सो निहाल श्री अकाल। कारण कुछ और नहीं, कारण बस इतना, मुझे गुरु नानक मिल गया। राजे के अंदर भी एक झरनाट सी उठी। कहता वो गुरु नानक जो घर घर जाके तारता है, कहता वही गुरु नानक। वो कहता तुझे सजा तो बाद में दूंगा, पहले मुझे उसके दर्शन करा। तो भूमिया कहता है बाबा ऐसा प्यारा है, ऐसा गुरु नानक मेरा प्यारा है, राजा तुझे क्या बताऊं। और मुझे भी उसके दर्शन एक बारी हुए हैं, मगर तुझे मैं क्या बताऊं, जब का मैंने उसको इन आंखों से देखा है, वो आंखों से परे हो ही नहीं रहा। गुरु जी, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो ऐसा है मेरी आंखों से ओझल हो ही नहीं रहा। फिर उस दिन से दोनों गुरु नानक के उपासक बने। मेरे कहने का इशारा समझो, गुरु को सच बड़ा अच्छा लगता है, गुरु के प्यारों को सच बड़ा अच्छा लगता है। अब वहीं पे आ जाओ, बाबा ईश्वर सिंह जी हरदित सिंह को कहते छोड़ दे शराब। कहता बाबा जी नहीं छोड़ सकता, शराब नहीं छोड़ सकता, जो कहोगे मानूंगा, मगर शराब पीनी नहीं छोड़ सकता। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहते अच्छा शराब फिर पीवी जा, शराब पीवी जा। आप भी हैरान होवोगे, महापुरुषों ने यह कह दिया पीता रहे शराब। अब अगली बात सुनना, कहते शराब पीवी जा, मगर एक वचन मानेगा, ये हुक्म करो। कहते जितना नेम करता है ना रोज, उसके अलावा 2 पाठ रोज सुखमनी साहब के करेगा। कहता जी जरूर करूंगा। कहते 2 सुखमनी साहब के पाठ करके रोज गुरु नानक गुरु रामदास के आगे अरदास कर, बाबा ये अवगुण मेरे वश में नहीं, आप कृपा करो, कोई ना कोई विध बना दो, ये अवगुण मेरा खुद ही छुड़वा दो। आखो वाहिगुरु जी। कहते शराब पीवी जा, ये वचन मान। वो जब चला गया ना, तो जो सेवादार नजदीकी था वो कहता महापुरुषो ये आपने आज क्या कह दिया, उसको गलत आज्ञा दे दी शराब पीने की। कहते जो दवाई दी वो नहीं देखी, जो दवाई दी वो नहीं देखी। कहता मैं समझा नहीं। कहते अगर इसने सचमुच ये वचन मान लिया ना, 2 सुखमनी साहब रोज शुरू कर दिए और गले में पल्ला डाल के रोज गुरु को कहना शुरू कर दिया ना, महाराज ये अवगुण मेरे बस में नहीं, मेरा अवगुण छुड़वा दो। कहते एक दिन आएगा, इसके अवगुणों को छुड़वाने का जिम्मा गुरु नानक अपनी झोली में डलवा लेंगे। वाहिगुरु सत श्री अकाल। कहते सुखमनी साहब में लिखा है सिख की गुर दुर्मत मल हिरै। कहते एक टाइम ऐसा आता है जब सिख की माड़ी मत को दूर करने की जिम्मेवारी गुरु खुद अपनी झोली में डलवा लेता। गुरु खुद ही दूर कर देता है उसकी माड़ी मत को, क्योंकि बाणी जब पढ़ते हैं गुरु की नजर के पात्र बन जाते हैं। और गुरु की नजर ऐसी है जो बड़े से बड़े अवगुणों को भी छुड़वा देती, अकृत घणों का भी उद्धार करवा देती। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। तो बाणी से जुड़ो, अमृत वेले से जुड़ो। जिथों जिथों आए गुरु नानक सब दियां हाजरियां लावे। भुल चुक दी क्षमा, प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह।